آج کل کے دور میں نوکری ملنا بہت مشکل ہے، مشکل ہی نہیں، ہم جیسی عورتوں کے لیے تو ناممکن ہے۔ ہم جہاں بھی جاتی ہیں دھتکار دی جاتی ہیں۔ میری عمر 40 سال تھی، شادی آج سے 6 سال پہلے ہوئی تھی۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور طلاق کے بعد میں اس کا سارا خرچہ خود ہی سنبھالا کرتی تھی۔ ایک دن جب گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تو مجھے خود ہی گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نوکری لیے بغیر گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ گھر میں میرا بھوکا بچہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جب بھی خالی ہاتھ گھر جاتی تو وہ اور مایوس ہوتا۔ میں انہی سب سوچوں میں گم تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تمہیں نہیں پتا اس بازار میں عورتیں نہیں آتیں، اور آئیں تو اس کا کیا مطلب سمجھا جاتا ہے؟ مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے غصے سے چیخنے چلانے لگا۔ وہاں موجود لوگ بھی آ گئے، یوں میرا تماشا بن گیا۔ ان میں ایک جاننے والے فیض بھائی بھی تھے۔ فیض بھائی کی یہاں بہت عزت تھی۔ فیض بھائی نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ میری بہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیض بھائی نے مجھے بہن کہہ کر بلایا تو سب لوگ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ فیض بھائی ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بات پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ یہاں پر موجود مجھے اپنے جنرل سٹور میں لے کر گئے۔ جنرل سٹور ٹھنڈا تھا، مجھے پانی پلایا اور بولے، بہن تم اس طرح ذلیل و رسوا ہونے والی حرکتیں نہ کرو، تم میری بہن ہو۔ میں نے تمہیں بہت پہلے اپنی بہن بنا لیا تھا۔ تمہارا شوہر میرا دوست تھا، اس نے تم کو طلاق دے دی تو میں نے اس سے بات چیت ختم کر دی، پر تم سے بات چیت رکھی میں نے۔ اب میں تمہیں کوئی نوکری بتاتا ہوں، تم عزت سے وہ نوکری کرو۔ اس طرح اگر تم کسی سے پیسے مانگو گی یا پھر یوں ہی بلا مقصد بازار میں کھڑی ہو کر نوکری ڈھونڈو گی تو تمہیں کوئی کام نہیں ملے گا، الٹا لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے۔ فیض بھائی، میں کیا کروں؟ اس میں میرا قصور بھی تو نہیں ہے، مجھے کوئی کام نہیں آتا تو میں کیا کام کروں؟ میرے لیے آپ ہی نوکری کا بندوبست کر دیں، میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے، مجھے صرف گھر کے کام آتے ہیں۔ میں جس گھر میں بھی کام کرنے جاتی ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مرد ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل کے مرد کم اور بھیڑیے زیادہ ہیں۔ میری بات سن کر فیض بھائی نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اٹھو، میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں۔ نوکری تھوڑی خوفناک ہے، خطرناک ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی کر لو گی۔ فیض بھائی، کہیں آدمیوں والا کوئی کام تو نہیں ہے نا؟ ارے نہیں بھائی، میں تم کو جس جگہ لے کر جا رہا ہوں وہاں صرف ڈر اور دہشت ہوتی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایسے ماحول میں کوئی بات کرے۔ فیض بھائی، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ آگے آگے چل رہے تھے، مجھ سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی، بس جہاں لے جا رہا ہوں خود ہی جا کر تم دیکھ لو گی، ابھی بتایا تو تم میرے ساتھ نہیں چلو گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خدا جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ پھر ایک بڑا سا دروازہ کھلا جو کہ شہر کے وسط میں موجود ایک عمارت کا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی، اتنا پرانا، بڑا اور قد والا دروازہ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے پر پڑنے لگی۔ یہاں پر برف کی بڑی بڑی سلیں موجود تھیں جو شاید ایک درجہ حرارت پر رکھی گئی تھیں، مگر جب سے ہی میری نظر شیلف پر رکھے ان مردوں پر پڑی جن کو کفن نے ڈھانپ رکھا تھا، ان کے سفید کفن میری وحشت میں اضافہ کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہی میں کانپ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ آپ مجھے کہاں لے کر آ گئے ہیں فیض بھائی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا بہن، یہ مردہ خانہ ہے، یہاں تمہاری نوکری صفائی ستھرائی کی ہوگی۔ جب مردے اٹھا کر لے جائے جاتے ہیں ان کے پیچھے کافی باقیات رہ جاتی ہیں، کبھی کبھی تو کافی زیادہ گند پڑ جاتا ہے جسے صاف کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ یہاں پر لائے جانے والے مردوں کو کبھی کبھی غسل بھی نہیں دیا جاتا، کچھ تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتے ہیں، سو ان کو پوسٹ مارٹم سے پہلے یا پولیس کیس سے پہلے یہاں رکھا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ مردوں کو اس لیے یہاں رکھتے ہیں تاکہ تب تک ان کے ورثاء کو ڈھونڈ لیا جائے یا پھر موسم کی ہونے والی تبدیلیوں کا اثر ان مردوں پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، میں نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے مارے ڈر کے میرا برا حال تھا، پسینہ میرے پاؤں تک آ رہا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔
फैज़ भाई ने मुझे बताया कि यहाँ का इंचार्ज मेरा दोस्त है, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा। यहाँ सफाई करने वाली एक औरत की ज़रूरत थी, क्योंकि बाज़ औक़ात मुर्दा ख़वातीन को भी यहाँ लाया जाता है। ऐसे में एक मर्द के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता कि वो दूसरी जगह रखे, उसकी सफाई का इंतज़ाम करे। मैं उनकी बात समझ गई थी। मुझे ख़वातीन मैयतों के लिए यहाँ लाया गया था। चूँकि ख़वातीन मैयतें कम ही आया करती थीं, मगर फिर भी मैयत की बेहुरमती करना हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता था। तभी बहुत मामूली से काम के लिए मुझे नौकरी पर रख लिया गया। मेरी नौकरी उन दिनों 5,000 रुपये माहाना मुकर्रर की गई थी। ये मेरे और मेरे बेटे के लिए एक माकूल तनख्वाह थी। घर मेरा अपना था। मुझे किराए के घर की भी कोई फ़िक्र नहीं थी कि घर का किराया देना पड़ेगा। 5,000 में मुझे और मेरे बेटे की ज़िंदगी बआसानी गुजर सकती थी। मैंने फैज़ भाई से 200 रुपये वैसे भी ले लिए थे कि तनख्वाह मिलने पर दे दूँगी। 200 रुपये लेकर मैं बहुत खुश हुई। रास्ते में आते हुए मैंने फल फ्रूट लिए, दलिया भी लिया। दूध वगैरह लेकर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैं बहुत खुश थी कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अपने बच्चे के लिए हकीकत में कुछ खाने को ले जा रही हूँ, वरना तो बचा खुचा खाना या फिर कहीं से गिरा हुआ दूध हिलाकर अपने बच्चे को दे देती, जो बाज़ औक़ात गंदगी मिला होता था। मगर आज मेरे दिल में हकीकी इत्मीनान था। घर पहुंचकर मैंने अपने बच्चे को सब कुछ बताया। मेरा बच्चा 5 साल का हो चुका था। वो बहुत खुश रहता, लेकिन कभी कभी भूख की वजह से उसे गुस्सा आ जाता था। पर आज तो मेरा बच्चा बार बार उछल कूद कर रहा था। ये देखकर मेरा दिल इत्मीनान से भर गया। मैंने सोचा कि अब मैं आतिश को करीबी स्कूल में भी दाखिल करवा दूंगी और साथ ही साथ अपनी नौकरी से घर का निज़ाम चलाऊंगी। अगले दिन मैं नौकरी पर पहुंच गई थी। नौकरी पर पहुंची तो वहां मुझे एक अजीब सा आदमी देखने को मिला था। इसने मुझे सलाम किया और बोला, तुम यहाँ नई हो, सो यहाँ के उसूल और कायदे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उसकी बात समझ गई थी, लेकिन अगली बात जो उसने की उसे भी हुआ था। देखो, तुम फैज़ भाई की बहन हो, तुम्हारी इज़्ज़त यहाँ महफूज है, कोई तुमसे गैर मुनासिब बात नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें भी एक बात का ख्याल रखना होगा। यहाँ पर जो भी बात होगी या अगर मेरी कोई भी हरकत तुम्हें गलत लगती है तो तुम उसके बारे में कुछ नहीं कहोगी। क्या मतलब? मैंने धीमे से लहजे में पूछा था। अरे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुर्दा खाने के 100,000 मामलात होते हैं। उन मामलात को देखना मेरा काम है। बाज़ औक़ात हो सकता है मैं कुछ ऐसा करूं जो तुमको गलत लगे, तो तुम ये बात फैज़ भाई को मत बताना। देखो, मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ, तुम भी मेरा ख्याल रखोगी तो बेहतर होगा। अगर तुम मेरी चुगली करोगी तो फिर तुम्हारे लिए भी यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। उस आदमी ने मुझे साफ साफ अल्फाज में ये बात समझा दी थी कि मैं उसके किसी काम में दखल अंदाजी ना दूँ। अरे भाई, मुझे क्या ज़रूरत है मैं आपकी कोई भी चुगली करूं। बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है, मुझे इसकी बहुत कदर है। आप फ़िक्र नहीं करें, मेरी वैसी आदत नहीं है। मैंने उस आदमी को मुतमईन तो कर दिया था, लेकिन मुझे डर भी लगने लगा था। खैर, मैंने तो यहाँ काम करना था, फैज़ भाई का सहारा था, तो मैं मुतमईन हो गई। थोड़ी देर के बाद वो आदमी उस कमरे से बाहर चला गया। मुझे अब यहाँ मुर्दा खाने में सर्दी लगने लगी थी। उसने मुझे भी थोड़ी देर के लिए बुला लिया। बोला कि तुम चाय पी लो और मुर्दा खाने में ज़्यादा देर नहीं रहना, बस सफाई के लिए आना है। अगर कभी कोई खातून मैयत आएगी तो मैं तुमको बता दूंगा। ज़्यादातर तुम इस इमारत का ख्याल रखना, मुर्दा खाने में जाने की नौबत नहीं आएगी। मैं उस शख्स की बातें सुनकर कुछ कहती नहीं थी, बस खामोश रहती। बातों बातों में उसने मेरी तनख्वाह मुझसे पूछी। मैंने कहा कि मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये महीना है। ये तो बहुत कम है, लेकिन फ़िक्र नहीं करो, यहाँ मुर्दा खाने में ऊपर की कमाई भी बहुत है। उसकी बात पर मैं चौंक गई थी। ऊपर की कमाई? क्या मतलब? बस तुम 2-3 दिन यहाँ रहोगी तो समझ जाओगी। ऊपर की कमाई तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार बना देगी। वो हंसने लगा था। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ भाई, आपने मुझे क्या समझा है? अरे बीबी, मैं वो बात नहीं कर रहा। देखो, लोगों के मुख्तलिफ मकसद होते हैं। वो बाज़ औक़ात अपनी कोई बात मनवाने के लिए हम मुर्दा खाने वालों को पैसे दे देते हैं। हम अपनी मजबूरियों का सौदा उनसे करते हैं और हमारी ज़िंदगी कुछ दिन के लिए आसान हो जाती है।
अच्छा, वो बात अलग है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देना। हाँ हाँ, उस बारे में तुम बेफिक्र रहो। कोई तुम्हें ऐसी बात भी कहे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तुम एक बाकिरदार औरत हो, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत खुश हुई थी। चलो, कम से कम अब मुझे अपनी इज्जत का खतरा नहीं था, वरना तो यहाँ लोग यही कहते थे कि जहाँ पर आई हो वहाँ तुम्हें कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा। खैर से अगले दिन ही वो वाक़या हो गया जिसके बारे में इस शबीर नामी शख्स ने मुझे बताया था। मैं मुर्दा खाने की सफाई करके फारिग ही हुई थी कि एक औरत घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। इसने देखा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे बाहर बुलाया। मैंने देखा कि वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसने अपने आप को काली चादर में ढांप रखा था और वो बहुत वहशत ज़दा लग रही थी। लगता था कि वो जल्दी में है, अपना काम करके जाना चाहती है। वो मेरे करीब आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल जिन भूत वाला था। देखकर लगता जैसे अभी कब्र से उठकर आई है। चेहरे पर बेतहाशा पाउडर मला हुआ था। अब मुझे लगा कि वो दरअसल खूबसूरत नहीं बल्कि किसी मुर्दे की तरह सफ़ेद। जी बोलें, क्या बात है? उसने बोलने से पहले ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उसमें कुछ पैसे थमाए और मेरी मुट्ठी बंद करके बोली, खुदा के लिए मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर दूंगी। मैंने अपनी मुट्ठी खोलकर देखना चाहा तो वो दोबारा मेरी मुट्ठी बंद करते हुए बोली, तुम पैसों की फ़िक्र नहीं करो, तुम जितने कहोगी मैं तुम्हें उतने ही पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे अंदर मुर्दा खाने तक जाने की इजाज़त दे दो। मैंने उसकी बात सुनकर नफ़ी में सर हिला दिया। देखें, मैं आपका काम तो कर सकती हूँ, पर मुर्दा खाने में आपको जाने नहीं दूंगी। दरअसल बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको अंदर जाने के लिए कहा है तो वो शोर करेंगे। खामखा अगर पुलिस केस हुआ तो भी मसला बनेगा। आप मुझे बता दें, मैं आपका काम कर दूंगी। मैंने उस औरत से पूछा, अगर तुम मुझे अंदर नहीं देने जा सकती तो तुम मेरा एक काम खुद ही कर लो। हाँ हाँ, बताओ। उसने एक शॉपर निकाला। शॉपर काले रंग का था और काफ़ी बदबूदार था। मेरे दूसरे हाथ में देकर बोली, मैं तुमको एक मुर्दा बताऊंगी जो खिड़की की उस तरफ रखा गया है, थोड़ी देर पहले ही आया है। उसके कफन पर मैंने सुर्ख रंग का निशान लगाया है। तुम उस कफन को ढूंढ लो और वो जो मुर्दा है उसके कफन में अपनी कमीज़ का कोई भी टुकड़ा फाड़ कर डाल दो। उसके ऊपर ये स्याही गिरा देना। उसने मुझे एक छोटी सी बोतल थमाई और एक थैली भी जिसके अंदर एक और कपड़ा रखा था। मैं औरत के तासुरात देखकर हैरान रह गई। वो बहुत डर भी रही थी और जल्दी में थी, मगर उसने मुझे अपनी कमीज़ का टुकड़ा फाड़ने का कहा था। ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने ये करने से मना कर दिया। खैर, उसने मुझे खुद ही एक और कपड़ा निकाल कर दिया। बोली कि ये मुर्दे के कफन में डाल देना। मैंने कहा, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। फिर मैंने ऐसा ही किया। वो औरत वहाँ से चली गई। मैं मुर्दा खाने में आई। खिड़की के पास ही एक नई लाश लाई गई थी। मैंने उसके कफन के अंदर वो कमीज़ वाला टुकड़ा रख दिया था। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था, सो मेरे लिए ये काम कोई ज़्यादा मुश्किल न था। मैंने जैसे ही वो टुकड़ा वहाँ रखा, खौफ की एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मुझे लगा कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा काम किया था। मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन चूँकि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि इसका असर क्या होगा, औरत ने ऐसा क्यों किया है, मैंने बस पैसे लिए इसका काम कर दिया। तभी वो औरत वहाँ से फ़ौरन चली गई थी। मैंने अपनी मुट्ठी खोल कर देखा। मेरे पास उसने पूरे 10,000 रुपये थमाए थे। मैं हैरान हो गई थी। इतने पैसे, वो भी मामूली से काम के। या अल्लाह, ऐसा कोई और काम आ जाए तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाए। मैंने उन पैसों से कमेटी डाल ली। बड़ी खुश हुई। मैंने अलबत्ता अपने भाई को ये बात नहीं बताई थी। अलबत्ता वो आदमी जो कि बशीर नाम का था और वहीं पर नौकरी करता था, उसको ये बात पता थी। उसे मैंने 1,000 रुपये हिस्सा भी दिया था। यही कहा कि औरत ने मुझे 6,000 दिया है। वो मुतमईन हो गया। बोला कि मेरे पास भी कोई काम आएगा तो मैं तुमको पैसे दूंगा। मैंने शबीर भाई से बहुत पूछने की कोशिश की कि उस औरत ने मुझसे ये काम क्यों करवाया। बोले कि इन लोगों के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, तुम फिक्र नहीं करो, जो हुआ उसको भूल जाओ। खैर, रात गई बात गई, मैं भी इस चीज़ को भूल गई थी, मगर उस औरत की शक्ल
मेरे जहन पर नक्श हो गई थी। इस मुर्दा खाने के करीब ही एक कब्रिस्तान भी था जहां अक्सर मुर्दों को दफनाने के लिए लाया जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं घर जा रही थी कि कुछ लोग एक कब्र के आसपास खड़े थे। मैंने देखा उन औरतों में जो कि काफ़ी फासले पर खड़ी जनाजे को दफन होता देख रही थी, वही औरत भी खड़ी थी। मुझे उसको देखकर बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि आज वो खुश लग रही थी। उसका चेहरा मुतमईन था। जितनी परेशान वो उस दिन थी, आज उतनी ही खुश थी। मुझे बड़ा सख्त धचका लगा था कि कोई औरत किसी के जनाजे पर खुश कैसे हो सकती है। मैं वहाँ पास से गुजरी तो उसने मुझे देखकर अपना चेहरा फेर लिया था। मैं हैरान हो गई, मगर फिर अगले दिन वो दोबारा मेरे पास आ गई। अब की बार वो बिल्कुल मुतमईन थी। इसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसका एक और काम कर दूं तो वो मुझे इससे भी ज़्यादा नवाज देगी। मैं हैरान हुई थी। अब तुम्हारे पास क्या काम है? मेरी बात पर उसने जो मुझे चीज़ बताई वो काफ़ी मुश्किल थी। देखो, कल जहाँ से तुम गुजरी थी वहाँ एक मुर्दे को कब्र में उतारा जा रहा था। वो एक और शख्स का जनाजा था जिसको तुम नहीं जानती। वो मेरे ही ख़ानदान का था। लेकिन मसला ये है कि जो टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया था ना, जो तुमने उस मुर्दे के कफन में डाला था, उसी जैसा एक टुकड़ा उसके कफन में भी डालना है। मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि मुर्दे के आसपास लोग बहुत थे। ऐसा करना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। पर अब वो कब्र में पहुंच गया है। अगर तुम ऐसा कर दो कि यही कमीज़ का टुकड़ा उसकी कब्र में जाकर, यानी कब्र खोलने के बाद कफन में रख दो, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। औरत की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 50,000 का मतलब ये कि मैं अपने घर का सारा सामान ला सकती थी, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये काम भी तो बहुत मुश्किल था। मैंने दिल में सोचा, तुम सब्र करो, और हाँ, ये बात किसी और को मत बताना। कल आना, मैं तुम्हें बता दूंगी कि क्या करना है। वो मुझे आधी रकम देकर चली गई। मैंने बशीर भाई से ये बात की। वो तो चूँकि इन लोगों के भाव से वाकिफ़ थे। मैंने कहा, बशीर भाई, एक औरत है, मुझे 5,000 रुपये देकर गई है। कहती है कि ये वाला काम कर दो तो मैं तुम लोगों को 10,000 दूंगी। ये काम मुझसे होगा तो नहीं, पर चूँकि औरत मेरे पास आई है तो मैं 5,000 खुद रख लूँगी, 5 आपको दे दूँगी। आप ये काम करवा दो। बशीर की तो आंखों में ये सुनते ही चमक आ गई। बोला कि हाँ, फिक्र की क्या बात है, मैंने तो ऐसे ही काम करके अपना बंगला बनाया है। तुम इस औरत से कह दो कि कल आ जाए, मैं इसका काम कर दूंगा। वो कपड़ा भी मुझे दे दो, और अगर उसे सबूत चाहिए तो उसे कहो कि कब्र से थोड़े फासले पर आकर रात के 7 बजे खड़ी हो जाए। मैंने ये बातें जहन नशीन कर ली। अगले दिन वो औरत आई, उसको सारी कहानी सुनाई। बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम मेरी राजदार हो, मैं तुमको पूरे पैसे दूंगी। आगे तुमने जितना बांटना हुआ बांट लेना, तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरा भी मकसद पूरा हो जाएगा। यूँ मैं मान गई। फिर हमने उसका वो काम कर दिया जो उसने कहा था, और यूँ 50,000 की खती रकम मेरे हाथ लग गई, जिसमें से 5,000 रुपये मैंने बचो दिए। 45,000 रुपये अपने दामन में छुपा कर घर ले आई। मेरी तो जैसे चांदी हो गई थी। अगले तकरीबन 1 हफ्ते में मैंने अपना घर सामान से भर दिया। मेरे घर में इतनी रौनक कभी नहीं आई थी। यूँ मेरी खुशी की इंतहा न रही। मगर कहते हैं कि इंसान को अपने अमाल का हिसाब तो इस दुनिया में या आखिरत में देना ही पड़ता है। एक दिन जबकि मैं बाज़ार से गुज़र रही थी तो वहाँ पर मजमा लगा था। लोग बड़ी मुश्किल से एक औरत को संभाल रहे थे, क्योंकि वो बुरी तरह रो रही थी। मुझसे सब्र न हुआ। ये देखकर मैं भी आगे बढ़ी, पर यह देखकर धचका लगा था कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जो अक्सर मेरे पास अपने काम करवाने के लिए आया करती थी। मैंने उसे देखते ही पूछा, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, मुझे मेरे आमाल का फल मिल गया है। वो औरत चीखते हुए बोली। आसपास के लोग अपने कानों को हाथ लगा रहे थे। वहाँ मौजूद ही एक आदमी ने मुझे बताया कि ये औरत बहुत अरसे से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही है, पर इसे माफ़ी नहीं मांगी। इसे अल्लाह ने माफ़ नहीं किया। इसके बाएं हाथ में एक छाला है जिसमें मुसलसल दर्द रहता है। ये चाहकर भी उसका इलाज नहीं करवा सकी। आज किसी लेडी डॉक्टर ने इसे कहा था कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगी, मगर छाला देखकर उसने भी मना कर दिया कि ये लाइलाज है। तभी ये रो रही है। कहती है कि मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत बुरा किया। उनकी मौत के लिए मैंने गड्ढा खोदा। मैंने उन पर काला जादू करवाया, उनकी खुशियों को तबाह करने की कोशिश की।
اسی وجہ سے یہ چھالا سزا کے طور پر میرے ہاتھ پر نکلا ہے۔ اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں تو نہیں جانتی تھی کہ یہ کوئی موت کا چکر ہے۔ یا اللہ، اب میرا کیا ہوگا؟ میں یہ سنتے ہی گھر بھاگی، وضو کر کے نماز پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، مگر مجھے اب بھی دل کو چین نہیں آ رہا۔ اس بات کو تقریباً 10 سال گزر گئے ہیں۔ میں اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں، میں اللہ سے توبہ کر، میرا بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے، اب وہ جوان ہے۔ مجھے اسے دیکھ دیکھ کر خوف آتا ہے کہ کہیں میرے بچے کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے۔ آپ بتائیں، میں نے یہ سب لا علمی میں کیا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بات ایسی ہے کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، فرضی کہانی بنا کر آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ آپ مجھے کوئی مشورہ دیں۔ خدا کے لیے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔